Good morning, students. This is Sanchit Kalra, your science teacher. And today we are going to start our next chapter of chemistry, that is atoms and molecules. We have discussed this chapter earlier in the classes as well. But as you guys are facing a lot of problems and doubts in this chapter, so I thought we should discuss this chapter one more time. This is basically a revision session, so we won't go in that much detail. This is just to give you an overview of this chapter and to clear some of your doubts. Okay, so without wasting time, let's get started. So first of all, we'll discuss about what is matter. So as you have read in your junior classes, that anything that occupies space and has mass is matter. So here as well, I have written like we come across different things around us like chair, table, etc. Now all these things that surround us have mass and weight. Okay, so they all constitute matter because matter is what? Anything that occupies space and has mass. So anything that we can see, that we can feel, mostly anything in the universe, almost anything in the universe constitute matter. Okay, so I hope you understood what matter is. Matter is basically anything that occupies space and has mass, be it air, be it any pen around you, be it your cell phone, your laptops, your scale, your pencils, your notebooks. They all have some mass and they all occupy some space. So they are matter, be it microorganisms, anything that you, even those organisms which you can't see with your naked eyes or with even simple microscopes. Those also occupy some space and has mass. So they are also matter. Okay. Now, before discussing this chapter in detail, let us try to understand the divisibility of matter. India has a great privilege and honor to have some of those philosophers who gave the theory of divisibility of matter. So, the first one of them is Maharshi Kanad. So he basically postulated that if we keep on dividing the matter, which he called Padarth at that time, we will get smaller and smaller particle, and soon we'll achieve the smallest particle, which he said or termed as a Paramanu, which may not be divided. Like what he did was, we try to figure this out or understand this in Hindi. That man took a bowl full of rice. उसने चावल का एक कटोरा भर के ले लिया and उसने उसको बाइट करना शुरू कर दिया, चबाना शुरू कर दिया, and he go on chewing that rice again and again, और उसको एक अलग बाउल में सेपरेट कर रहे थे वो. एंड उन्होंने देखा कि एक पॉइंट के बाद उसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब उसको और तोड़ा नहीं जा सकता. जो उन्होंने राइस लिया उसको उन्होंने पदार्थ बोला, और जिस पॉइंट पे उसको और तोड़ा नहीं जा सकता था, लाइक इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, उस पॉइंट पे उस जो ब्रोकन और च्यूड पीसेस ऑफ राइस थे उसको उन्होंने परमाणु बोला. तो उन्होंने बोला कि एक कंडीशन, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम पदार्थ को और नहीं ब्रेक कर सकेंगे, और जब हम उसको ब्रेक नहीं कर सकेंगे उसको हम परमाणु बोलेंगे. ओके, ये परमाणु का कंसेप्ट था, वो हमारे एक इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कनद, इन्होंने दिया था. ओके, उसके बाद एक और फिलोसोफर आए हमारे पाकुदा कातायामा. उन्होंने बोला, he said that that there are various forms of matter because the particle of matter exist together in combinations. उन्होंने बोला कि मैटर सिर्फ फ्री स्टेट में नहीं एग्जिस्ट कर सकता. लाइक हमने बोला कि राइस लिया, राइस को ब्रेक किया, पदार्थ लिया, पदार्थ को ब्रेक किया और परमाणु बनाया. कातायामा साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैटर सिर्फ फ्री स्टेट में ही एग्जिस्ट कर रहा है, कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है. कंबाइंड स्टेट क्या है विल डिस्कस, जैसे जैसे चैप्टर चलेगा हम बात करेंगे. लेकिन एक इंसान यही थे, पाकुदा कातायामा ही थे, जिन्होंने ये बात बोली थी कि बहुत तरीके की फॉर्म होती हैं, क्योंकि जो पार्टिकल है मैटर के अंदर वो फ्री स्टेट में तो एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो कॉम्बिनेशंस में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. ओके, अब इंडियन फिलोसोफर्स की बात हमने समझ ली. अब समझते हैं कि ग्रीक फिलोसोफर्स थे, उन्होंने क्या बोला.
लाइक देखो, इंडियन फिलोसोफर्स थे जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया, सबसे पहले इंसान थे महर्षि कनाद, जिन्होंने पदार्थ से परमाणु तक की डिविजिबिलिटी बताई। उसी को ग्रीक फिलोसोफर्स ने कुछ नाम दिया जिसको हम पढ़ते हैं। ग्रीक फिलोसोफर्स जैसे कि डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, उन्होंने बोला दैट व्हेन वी कीप ऑन डिवाइडिंग द मैटर देयर कम्स अ टाइम व्हेन नो मोर डिवीजन ऑफ पार्टिकल कैन टेक्स प्लेस। ओके, लाइक जैसे हमने देखा कि चावल को चबाया, पदार्थ को चबाया, उसको ब्रेक डाउन किया और एक इतने पीस तक ब्रेक डाउन कर दिया जिसको उन्होंने बोला परमाणु। मतलब एक पॉइंट ऐसा आया जिसके बाद आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। यही बात इन्होंने बोली दैट इफ वी कीप ऑन डिवाइडिंग द मैटर देयर कम्स अ टाइम व्हेन नो मोर डिवीजन ऑफ पार्टिकल कैन टेक्स प्लेस। ओके, उन्होंने उसको क्या बोला, मैटर को बोला पदार्थ, और मैटर से जो फाइनल प्रोडक्ट बना जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता उसको बोला महर्षि कनाद ने परमाणु, और इन्होंने उसको बोला सच पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज एटम्स। ओके, अंडरस्टूड। उन्होंने बोला हिंदी में परमाणु, इन्होंने बोल दिया भैया नहीं, हम तो अपना नाम देंगे एटम्स बोलेंगे हम उसको। ओके, उसके बाद बोलते हैं बट ऑल दीज आइडियाज वर नॉट बैक्ड अप बाय मेनी एक्सपेरिमेंटल पीसेस। देखो, चावल के दाने को चबाना और उसको ब्रेक डाउन करके बोलना कि भैया इससे आगे नहीं डिवाइड हो सकता, ये कोई प्रूफ तो नहीं हुआ ना, ये हाइपोथेसिस ही है। लेकिन बाद में एक इंसान आया जिसका नाम था एंटोइन एल लवोइजियर, और उसने कुछ लॉज दिए एक इंसान के साथ मिलकर जिसका नाम था जोसेफ एल प्राउस्ट। अब इन्होंने क्या लॉज दिए और वो क्या लॉज थे उनको हम समझते हैं। आई होप इतना हमने जो अभी तक पढ़ा है ये आपको कुछ कुछ आइडिया लग गया होगा कि बेसिकली जो आइडिया था वो महर्षि कनाद से स्टार्ट हुआ था, जब उन्होंने बोला कि पदार्थ और परमाणु की बात करी। उसके बाद ग्रीक फिलोसोफर्स ने उसी परमाणु को एटम बोलना शुरू कर दिया, एटम अपना नाम दे दिया। फिर पाकुदा कातायामा आए, उन्होंने ये बात बोली कि मैटर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो ये जरूरी नहीं है कि वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करें, वो कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ अब कुछ जो ये लॉज हैं उनके बारे में देखते हैं। उससे पहले हम समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ओके, केमिकल रिएक्शन होती क्या है, आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें आपने पढ़ा होगा कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो बेसिकली जो केमिकल रिएक्शन होती है इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की वजह से वाटर के अंदर, जिसकी वजह से आयंस माइग्रेट करती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, दैट वो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, मतलब ब्रेक डाउन होता है किसी इलेक्ट्रोलाइट का, उसको बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन, जहां पे वो ब्रेक डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे आयंस मूव कर रही हैं और करंट मूव कर रहा है, वो उस केस में है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। यहां पर हम बेसिकली समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन है क्या। तो केमिकल रिएक्शन इज बेसिकली द प्रोसेस by which some substances react to form a new substances. Let's say A plus B reacts to form a compound C plus D. Simply let's take an example of आपके घर का। चाय तो हर कोई पीता होगा, नहीं पीता तो कॉफी पीते होंगे। एग्जाम्पल समझते हैं चाय से। आपने एक कप लिया, आपने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर पानी डाला, पानी के साथ आपने उसमें चाय पत्ती डाली, उसमें मसाला डाला, दूध डाला, चीनी डाली, उसको उबाल लिया, चाय बन गई, उसको छान लिया और आपके पास क्या बच गया एंड में, चाय तैयार हो गई। ओके, मतलब वो प्रोसेस जिसके अंदर आपने कोई सब्सटेंस लिए, 2 सब्सटेंस लिए, सपोज जैसे चाय के केस में हमने लिए 4 सब्सटेंस, ठीक है, 4 चीजें ली जिससे हमने फाइनली चाय तैयार करी। तो जो चीजें लगी इनिशियली, जिनसे फाइनली हमारी चाय तैयार हुई, जो इनिशियल में थी उनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। अब जब ये रिएक्टेंट कंबाइन हुए अंडर अ सूटेबल कंडीशन, यहां पर चाय के केस में सूटेबल कंडीशन क्या थी, हीट, एक ऑप्टिमम हीट दी और वो क्या हुआ, उबला। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम कंडीशंस के अंदर वो जब रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और कंबाइन होंगे तो फाइनली हमें प्रोडक्ट देंगे। सारा कुछ डाला, हीट दी, उबली वो चाय, और उसके बाद हमें क्या मिला, चाय मिल गई, फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने चाय का जो एग्जांपल दिया था बेसिक एग्जांपल है, ठीक है, आप केमिकल रिएक्शन के केस को समझने के लिए, जस्ट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ओके, द प्रोसेस बाय विच सम सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। कुछ सब्सटेंसेस रिएक्ट करें जैसे चीनी, पत्ती, चाय, चीनी, चाय, दूध और ये सब चीजें,
द सब्सटेंसेस विच रिएक्ट उनको बोला हमने रिएक्टेंट, मैंने आपको पहले बताया, एंड द न्यू वंस फॉर्म्ड उनको बोलेंगे हम प्रोडक्ट। एग्जाम्पल लिया है हमने, यहाँ पर कर्सर देख सकते हैं आप, ए प्लस बी से हमने बनाया सी प्लस डी, तो ए प्लस बी है रिएक्टेंट एंड सी प्लस डी जो हमने बनाया है वो है प्रोडक्ट। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल मैंने यही जो आपको टी वाला एग्जाम्पल दिया था वो यहाँ मैंने लिख रखा है, सो इफ यू वांट यू कैन रीड एज वेल। नाउ कमिंग टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि इंडिया के दो साइंटिस्ट थे, महर्षि फिलोसोफर्स थे, महर्षि कनद एंड पाकुदा कातायामा। उसके बाद कुछ ग्रीक फिलोसोफर्स भी थे, और जो फाइनली जो ये इनका कंक्लूजन निकला था ये था कि जो इन्होंने लॉज दिए थे वो कोई एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड नहीं थे, दे आर जस्ट हाइपोथेसिस। लेकिन जो ये रूल्स थे या ये जो लॉज थे इनको एक इंसान ने प्रॉपरली डिफाइन किया था बेस्ड ऑन सम एक्सपेरिमेंट्स, एक इंसान के साथ मिलके। द फर्स्ट मैन वाज लवोजियर, एंटोनियो एल लवोजियर, एंड उन्होंने एक इंसान के साथ मिलकर जिनका नाम था जोसेफ एल प्राउस्ट के साथ मिलके कुछ लॉज बनाए थे जिनको उन्होंने नाम दिया लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बेसिकली लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो वर्ड है उसका मतलब ये हुआ कि केमिकल रिएक्शन के अंदर जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कैसे कैसे कंबाइन कर सकते हैं। ओके, let's try to understand this from the definition. The process of combination of two or more elements to form a new compound is governed by certain laws. इसको और इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं सिर्फ चाय का ही, ठीक है। अगर मैंने पानी के अंदर चाय डाल दी, ठीक है, और दूध डाल दिया और उसको साइड पे रख दिया, मेरे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं है, क्या आपकी चाय तैयार होगी? नहीं। मैंने जब तक उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं दिया, जो चाय थी वो मिल्क के साथ रिएक्ट नहीं करी और दोनों ने अल्टीमेटली हमें प्रोडक्ट नहीं दिया। हम सपोज कर लेते हैं ऐसे ही दो एलिमेंट्स हैं, हमने जैसे चाय का एग्जांपल लिया तो चाय में पत्ती, जो चाय पत्ती और दूध थे उसको दो एलिमेंट मान लेते हैं, ठीक है। अब ये दो एलिमेंट कैसे कंबाइन करेंगे कुछ नई चीज बनाने के लिए, उसको कुछ लॉज गवर्न करते हैं। अब देखो ये चीज तो मैंने आपको जनरल एग्जांपल दे दिया समझाने के लिए। बेसिकली केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉज हैं वो क्या कहते हैं, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट किस तरीके से कंबाइन करेंगे ताकि वो एक कंपाउंड बना सके, उनको एक कुछ लॉज हैं वो गवर्न करते हैं। मतलब वो कुछ लॉज के बेसिस पर ही कंबाइन होते हैं, और वो लॉज को डिफाइन किया था दो इंसानों ने, एक था एंटोनियो एल लिवोइजियर और दूसरा था जोसेफ एल प्राउस्ट, ठीक है। आई होप आपको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पता लग गया होगा। अब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर कुछ लॉज हैं। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गे-लुसिक्स लॉ या फिर लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, एंड एवोगैड्रो लॉ। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गे-लुसिक्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। 9th क्लास में हम कंसर्न हैं सिर्फ दो लॉज से, law of conservation of mass and law of definite proportion. Okay, so let's try to understand these two laws one by one. First of all, we'll discuss law of conservation of mass. So this law basically says that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Meaning अगर हमारे पास शुरू में किसी रिएक्शन में शुरू में हमारे पास इनिशियल जो वेट था वो x किलोग्राम था, तो जो उसका फाइनल वेट होगा वो भी x किलोग्राम ही होगा। वो कैसे होगा उसको समझते हैं। सपोज करो वही चाय वाला एग्जांपल ले लेते हैं, एक स्टैंडर्ड एग्जांपल रखते हैं हम, उसके बाद ये जहां जो लिखा है उससे हम समझने की कोशिश करेंगे। सपोज करो मैंने दूध लिया, मैंने चाय पत्ती ली, मैंने चीनी ली, हमने उसको वे कर लिया, ठीक है। अब जब हमने उसको वे कर लिया, उसका वेट सपोज कर लेते हैं 100 ग्राम्स आया, ओके।
जब हमने उसको वे किया, उसका वे 100 ग्राम आया। अब मैंने क्या किया, हीट ऑन कर दी, उसको गैस पर रख दिया, बॉयल हो रहा है वो। जब वो बॉयल हो रहा है, उसमें से जो वेपर्स इवेपोरेट हो रहे हैं स्टीम बन के, ठीक है, मैंने उनको भी इकट्ठा कर लिया। अंडर सुटेबल कंडीशंस हम कर रहे हैं ताकि हम सब चीज को वे कर सके। मैंने जो स्टीम है उसको भी इकट्ठा कर लिया और उसको भी वे कर लिया, ठीक है। और फाइनली हमारे पास जो चाय बनी उसको भी वे कर लिया, और जो ऊपर हमारे पास सीव के अंदर जो स्ट्रेनर के अंदर रह गया उसको भी वे कर लिया। इनिशियली हमने जो रिएक्टेंट लिया था, दूध, चाय पत्ती और चीनी, उसका वे 100 ग्राम आया था। फाइनली हमारे पास जो चाय बन के तैयार होगी वो, प्लस जो हमारे पास सीव में बचेगा वो, प्लस जो गैस इवेपोरेट हो रही है वो स्टीम बन के, इन तीनों को जब हम वे करेंगे तो वो भी इक्वल आएगा किसके, रिएक्टेंट के। मतलब अगर इनिशियली हमारे पास 100 ग्राम था तो फाइनली भी हमारे पास क्या होगा, 100 ग्राम्स ही होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बेसिकली यही कहना चाहता है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, सॉरी, द मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, समझ आया। अब यहां से समझते हैं ए प्लस बी कि जब रिएक्शन हो रही है सी प्लस डी बन रहा है, ये कह रहा है कि मास ऑफ ए प्लस बी इक्वल होगा मास ऑफ सी प्लस डी के। ओके, आई होप आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ आ गया है। इसके बेसिस पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करने के लिए भी। वो एक्सपेरिमेंट आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से पढ़ सकते हैं। वो बेसिकली यही है जो मैंने आपको अभी बताया है। मैंने एग्जाम्पल कुछ और ले लिया, उसमें सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का एग्जाम्पल है। आप उस एग्जाम्पल को भी पढ़ सकते हो। अगर आपको कोई डाउट होगा तो विल डिस्कस दैट इन डाउट क्लास। आई होप आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ आ गया होगा। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट लॉ, that is law of constant proportion or law of definite proportions. So this law basically states that elements are always present in definite proportion by mass in a chemical substance. Meaning, मेरे को अगर चाय पत्ती बनानी है, आपके घर में कोई एज्ड लेडी होगी, है ना, या सपोज करो हम मार्केट में जाते हैं चाय की टपरी वाले के पास, तो उसको पता है कि हमें एक कप चाय बनानी है तो उसमें कितनी चाय पत्ती डालनी है, उसमें कितनी शुगर डालनी है, उसमें कितना दूध डालना है। ये तो हो गया एक रैंडम तुक्का, ठीक है। लेकिन केमिकल रिएक्शंस के केस में क्या हो रहा है कि जो एलिमेंट्स हैं वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन कर रहे हैं, और वो हमेशा ही फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन करेंगे। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल यहां लिया हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 में ही कंबाइन करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब अगर हम 9 ग्राम ऑफ वाटर को डीकंपोज करेंगे, तोड़ेंगे, तो उसमें हमें 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगी। सिमिलरली हम 18 ग्राम ऑफ वाटर को डीकंपोज करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आएगा, 16 ग्राम्स ऑफ वाटर और हमारे पास 2 ग्राम्स, सॉरी 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, जिसका रेशियो फाइनली क्या निकलेगा, 1:8। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जो एलिमेंट्स हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करेंगे केमिकल रिएक्शन में, और वो हमेशा फिक्स्ड रेशियो में ही होंगे, नो मैटर आप उसको किस तरीके से तोड़ रहे हैं या जोड़ रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और लिया है CO2 का। CO2 को हम बहुत सारे मेथड से ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे CO2 को हम जब ब्रेक करेंगे, देखो यहां पर अगर आप रिएक्शन देखोगे डबल डबल आ गया है, टाइपो एरर है यहां पर। हम सिर्फ इतनी रिएक्शन को देख रहे हैं, C+O2 से CO2 बन रहा है, ठीक है। ये दोबारा टाइपो की वजह से ये दोबारा आ गया है, यहां पर भी CO2 दो बार आ गया, तो उसको इग्नोर करना प्लीज। तो फर्स्ट केस में वो बोल रहा है C+O2 को जब हम कंबाइन कर रहे हैं तो हमारे को CO2 मिल रहा है, ठीक है। सेकेंड केस में जब हम CaCO3 को ब्रेक कर रहे हैं तो हमें CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि ये हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहेंगे, ठीक है। मतलब रेशियो ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो अब रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन क्या होगा, रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन जिस प्रोपोर्शन में ये कंबाइन कर रहे हैं वो होगा, जैसे C+O2, ठीक है।
कार्बन का मास कितना है 12, ऑक्सीजन का कितना है 16, 16 इंटू 2 32, O2 है तो 32, तो 16:32 में हमेशा CO2 मिलेगा हमें, नो मैटर हम उसको C+O2 के प्रोसेस से CO2 बनाए, या हम उसको CaCO3 के प्रोसेस से, मतलब या तो हम उसको कार्बन प्लस ऑक्सीजन को कंबाइन करें और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएं, या हम कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक डाउन करें, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएं। हमेशा वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में एग्जिस्ट करेगा, जो फिक्स्ड प्रोपोर्शन रहेगा 12:32. Okay, so I hope you understood what law of conservation of proportion is. तो आज के सेशन में हमने पढ़ा है अभी तक कि थ्योरी ऑफ डिविजिबिलिटी बाय इंडियन फिलोसोफर्स क्या थी, जिसमें हमने महर्षि कनद और पाकुदा कातायामा की थियोरी को देखा। फिर हमने थ्योरी ऑफ डिविजिबिलिटी बाय ग्रीक फिलोसोफर्स देखा। उसके बाद हमने जो पढ़ा है वो है हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें मतलब हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं उसको देखा था। फिर हमने पढ़ा है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या थे, क्या क्या टाइप्स थे, किन किन लोगों ने मिलकर बनाया, जिसमें एंटोनियो एल लेवोइजियर और जोसेफ एल प्राउस्ट का हाथ था। और उसके बाद हमने देखा कि वो 5 टाइप्स के हैं, जिसमें 3 हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर हमने डिस्कस किया जो हमने अपनी क्लास में पढ़ना था, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, और उसके बाद हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिस्कस किया, एंड फाइनली हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनाइट प्रोपोर्शन को डिस्कस किया। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय एंड। आज के सेशन के लिए इतना ही है। आई होप आपको समझ आया होगा आज का सेशन। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, एंड हम जो डाउट क्लास होगी उसमें भी डिस्कस कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। होप आपको समझ आएगा, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।